पेशेंट कह रहा है बेसिकली आई यूज टू गेट कंफ्यूज इन एग्जाम्स एंड नॉट डू वेल, माई ब्रदर हैज़ डन क्वाइट वेल। डॉक्टर साहब लिखते हैं सो आई आस्क हिम मोर अबाउट थिंग्स, देन ही टॉक्स अबाउट हिज वर्क इन द कैपिटल मार्केट एंड ही सेज basically I was not too comfortable with risk and I have a conservative nature। डॉक्टर साहब कहते हैं कि tell me about this playing। Patient, like I said, if you have a weak foundation, your building cannot stand, and whichever area you take, there is always some basic foundation to everything। So if possible, I try to incorporate that। Sometimes if required, then I might take some risk। ये बात उसने की। तो इसी के ऊपर डॉक्टर साहब लिखते हैं कि so he is talking of two things, of having basic foundation and then the possibility to take a risk। ठीक है, but here he is weak and he comes back to the conservative basic foundation part। then he gives an example of two Indian sportsmen। अब वो दो इंडियन स्पोर्ट्समैन की एग्जांपल दे रहा है पेशेंट। one who liked to just stick what he knew and play by the rules, and the other who really liked to put his foot out and take all the possible risk, and he says that in his mind he kind of alternates between the guy who stays put and the guy who puts his foot forward and takes the risk, and these are the two parts of himself, and he says that both these parts are required। you need a part that stays in and does not take a chance and stay within his capacity, and the other part that steps out and takes the risk। both these parts are needed by everybody। ये पेशेंट बातें कर रहा है। and then he talks about his shy and quiet childhood and how he preferred to stay alone, and he felt inferior also as a child and a lot of anxiety in performing in public। so that's okay, but then he says but I feel all the more determined to fight against it, to try to control it and turn things around in my favor। I would try to change something। Generally a different strategy works। I like to be seen as somebody who can change the tide, or who can change the current situation which all others have not been able to। so my presence adds that strength to the situation and strengthens that set of people and their abilities to change the current situation for the better, to make a distinct value addition। it requires creativity, to think differently। you cannot simply have a certain pattern of thinking, you have to think differently। यहाँ तक हमें कुछ समझ आ रही बात में? अच्छा, अब ये पीछे से जो सारा कुछ आ रहा है वो हमें कुछ आ रहा है कि कुछ करने की बातें कर रहे हैं, कुछ स्ट्रक्चर के इश्यूज अब तक हमारे सामने आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं एंड देन ही टॉक्स अबाउट कैट्स। तो वो कहता है आई लव कैट्स। अब ये बड़ी हैरानी की बात है, मिनरल्स के अंदर ये कभी हो नहीं सकता कि जानवरों से मोहब्बत हो, लेकिन फास्फोरस को भी होती है, परिंदों से मोहब्बत, ये रूब्रिक भी आपकी है। लेकिन अगर आप पूछेंगे ना उसका एक्सपीरियंस, वो आपको एक्सपीरियंस बड़ा अजीब निकलेगा। एक्सपीरियंस फिर स्ट्रक्चर की तरफ आ जाएगा। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं पूछा कि आपको, कहते मैं इनको, डॉक्टर साहब लिखते हैं कि नाउ दिस इज फनी, इफ ही इज अ मिनरल किंगडम ही शुड नॉट बी लविंग कैट्स, इट्स एन एनिमल थिंग। सो आई आस्क्ड हिम सो टेल मी अबाउट कैट्स एंड ही सेज, वो कहता है व्हाट आई लाइक इन देयर इंडिपेंडेंस। वो कहते जो मुझे अच्छी लगती है कि बात इनकी आज़ादी अच्छी लगती है। ठीक है, दे स्टैंड ऑन देयर ओन फीट, they are not dependent on anybody or anything। I mean in terms of food, in terms of maintaining themselves, they are quite confident।
ठीक है, तो फिर वो मिनरल की तरफ आ गया उसकी परसेप्शन। सो डॉक्टर साहब कहते हैं सो हियर is his ideal. His ideal is of somebody who is independent and who stands on his own feet, exactly the opposite of what he sees in himself now. Then he talks of decision, he says. अब ये जो रो है आपकी, ये वो रो है जिसमें लोग ये बातें करते हैं कि हम अपने पाँव पे नहीं खड़े, हैंडीकैप ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। मुझे डर है कि मैं माजूर ना हो जाए, अपाहज ना हो जाए। ये यहाँ पर ये की वर्ड है इसकी, इस रो हैंडीकैप, डिपेंडेंट, ठीक है, नो लेग्स, और अब डिसीजन के बारे में कहते हैं आई लाइक टू पॉन्डर, टू थिंक बिफोर टेकिंग अ डिसीजन, आई लाइक टू वे द प्रोस एंड कॉन्स, व्हेन यू आर टेकिंग डिसीजंस इट मीन्स लीविंग द सेफ्टी ऑफ योर करंट सिचुएशन एंड वेंचरिंग आउट। तो कहते हैं जब आप कोई रिस्क लेते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, फिर यही होता है कि फिर ये आप ये जब इससे निकल जाएंगे, आप अपनी सेफ्टी वाला पॉइंट, अपना कंफर्ट जोन छोड़ रहे हैं, फिर उधर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इट इज़ अबाउट चेंज। डॉक्टर साहब कहते हैं सो इन दिस रेमेडी टेंटलम दे सी टेकिंग डिसीजंस एज स्टेपिंग आउट ऑफ योर सेफ्टी जोन, of venturing out, of doing something different or new, and they hesitate, they get scared, and then they come back to the safety zone. This is the whole idea of this remedy. ये जो सेंसेशन अप्रोच है, ये हमें कुछ मुश्किल उस वक्त तक लगती है जब तक आप खुद अपने हाथों से इसकी दवाई प्रेस्क्राइब नहीं करते। मैं इसको ये कहता हूँ कि ये इंसानों को सुनने की है, इंसानी रवैयों की जो है ना हमें परख बताती है। हमने सिर्फ उसके बिहेवियर्स को जानना है। तो अब देखिए ये सारी बातें डॉक्टर साहब क्या सुन रहे हैं इसके अंदर। तो पहले जो हम काम कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, उसमें हम चले जाते थे भाई वो नो डाउट के सिम्टम्स की बहुत बड़ी अहमियत है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर सिम्टम से बड़ी चीज़ आपको मिल रही है तो हम उस तरफ क्यों नहीं जाते। तो देखें ना, फिर अगर होम्योपैथी जो है, अगर आप ये मानते हैं कि इलाज बिलमिसल है, इसको मानते हैं आप लोग, ठीक है ना सब। तो अगर इसको हम मानते हैं कि इलाज बिलमिसल है, तो अगर वो मरीज जो है वो टेंटलम से ठीक होना था तो एनाकार्डियम से कैसे हो सकता है। अगर वो ये बिलमिसल है तो एनाकार्डियम कैसे होता, वो तो बातें कर रहा है मिनरल्स की। अब आपको ये कॉन्सेप्ट दिए मिनरल्स के, एनिमल्स के, प्लांट्स के। आप पहले हम ये करते थे, हम केस टेक करते थे, तब हम ये सोचते थे पेशेंट जो है ये पल्साटीला का है, बेलाडोना की बातें कर रहा है। दवाइयों को जहन में रख के केस टेक करना बहुत डेंजरस है। दवाई आप डिसाइड नहीं करते, दवाई पेशेंट को डिसाइड करने देते। दवाई जो है वो पेशेंट को डिसाइड करने देते, आप दवाई उसकी डिसाइड ना करें। और ये हम कितना करते हैं वैसे। अच्छा, पेशेंट यहाँ पर क्या कर रहा है, पेशेंट आपको एक पोर्ट्रेट बना के दे रहा है। हनीमैन कहते हैं कि पेशेंट को पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज जो है वो मुकम्मल करने, पेशेंट बता रहा है, आप उसको सबको इकट्ठा करते हैं। जब सारा कुछ इकट्ठा हो गया बस वो एक जो पिक्चर बनेगी वो बनेगी। वो क्या, किसने बना के दी, आपको पेशेंट ने बना के दी। हम अभी जो मेथड है इसमें इन्होंने आपको बिल्कुल सिस्टमाइज कर दिया मैथमेटिक्स की तरह कि भाई आपने पेशेंट को पहले तो ये देखना है। हम ये देख रहे होते हैं कि पेशेंट ये बातें जो कर रहा है ये मिनरल है, प्लांट है, एनिमल है। अगर ये प्लांट है तो फिर ये कौन सा प्लांट है, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। अच्छा, केस टेकिंग में भी आपको एक बहुत